Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Kamran Zahir, course in charge of forensic pharmacy. So this video lecture is the extension of a previous lecture where we have clarify our concept, get an insight regarding what the acts are, how they are get passed from the parliament, what is a bill, what is an ordinance, and the such related terminologies. Like if you can recall it, the focus was given on the legislation or the legislative procedure. Now in this video we will give some emphasis on understanding the act itself, and we will take Drug Act 1976 as an example. Okay, so in this connection, first we will focus on understanding some four terminologies, and these terminologies are section, subsection, clause and subclause. What are they and where we can find them in any act? If you look at the Drug Act 1976, the one thing that comes to our mind is that the act is not written in the paragraph style. Like there may be some chapters, but they are not, these are not the long paragraphs. There are some numbers, and if we give some more focus on these numbers, we will find some specific pattern. Like you will get number 1, okay, you will get number 2. You can again see the number 2 here, but this number 2 is with bracket, number 3 with bracket, number 1 with bracket. So you can find here numbers in two different format, one without bracket and the other numbers with bracket. Similarly, you will find within bracket some alphabets like A. Can you see? Like this adulterated drug. Okay. B, C, D within bracket. And in the similar fashion, you will find some Roman numerals, smaller Roman numerals within bracket. So the one of them is the section, subsection, clause, subclause. So the number without bracket, like this 2 or this 3, this is section. Okay, this will be called section only if we are talking about some act. Like this is a drug act. When it is a act, you will call it section. If we are talking about rules, you will call it rule number 1. Okay, if you ask, or if I ask you that where the definitions are written, you will simply say that definitions are written under section 3. Okay, similarly this number within bracket is called subsection. Alphabets within bracket are called clauses, and the Roman numerals within bracket are called subclauses. So these things are used to give some reference to the act. Like in this act, you simply can't say, like if you want to search some content, you simply can't say that go to page number X, page number Y, page number Z. Like these acts are not like the page numbers are not absolute. It will depend upon the font size, font style, maybe the printing size, the page size. The page number will vary. So for absolute referencing, you will be using these numbers. For example, if I want to ask you that where the definition of aptitude board is written, okay, read this. You will find this B. What we call this B? Clause or subclause? Just think about it. Clause or subclause? This would be a clause because subclause will be with the Roman numeral. So what was the question?
where the definition of aptitude board is written, you will give the reference that definition of aptitude board is written under clause B of subsection. Can you find any subsection here? No, there is no subsection. Okay, what is above the subsection? The section. Okay, so you will give the reference that the definition of aptitude board is written under clause B of section 3 of what? Of the Drug Act 1976. This is the pattern how you give the reference. Similarly, if I ask you that where the definition of drug is written in this act, the definition of drug, you will tell the definition of drug is written under clause G of what is the section of definition? Of section 3 of the Drug Act 1976. Okay, so we will take another example just to get a deep insight. For example, okay, so read this. Read the text. Regulation of sale of drug. The provincial government shall regulate the sale of drug in the prescribed manner and may for that purpose. Okay, you can read it later. So the thing is that the provincial government has the power to regulate the sale of drug. Okay, so if somebody asks where it is written, you will simply say that it is written under the section 6 of the Drug Act 1976. So take as a summary, section is number without bracket, subsection is number within bracket, clause is small alphabet within bracket, and subclause is the small Roman numeral within bracket. चलें, जो कुछ अभी देखा है एक और एग्जाम्पल के ज़रिए इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं. I am taking you some random text. Okay, you can see on the screen. I am reading this text, like which I am just highlighting. The text is: a person sentenced by a drug court may prefer an appeal to a bench of the High Court consisting of not less than 2 judges within 30 days of the judgment. Okay, इसका कंटेक्स्ट क्या है इसे फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए छोड़ दें. बस यहाँ कहने की ये बात है कि ड्रग कोर्ट की बात हो रही है, एंड इफ़ एनीवन इज़ ग्रीव्ड विद द डिसीजन ऑफ ड्रग कोर्ट, ही में अपील इन फ्रंट ऑफ हाई कोर्ट, और उस बेंच में कम से कम 2 जजेस होने चाहिए, और ये अपील ड्रग कोर्ट के डिसीजन के 30 डेज़ के अंदर अंदर हो. ठीक है, इसे समझेंगे हम थोड़ा ठहर कर. अभी सिर्फ आई एम टेकिंग इट जस्ट फॉर एन एग्जांपल. अब कोई ऐसे पूछेगा वो कि अपील 30 डेज़ में होती है, हाई कोर्ट में होती है, कहाँ लिखा हुआ है? ओके, नाउ अब आप रेफरेंस दोगे. रेफरेंस क्या होगा? वेयर वाज द टेक्स्ट? इसके पहले लिखा हुआ था नंबर 7. नंबर 7 विद इन ब्रैकेट. क्या होगा नंबर अगर ब्रैकेट के अंदर होगा? क्लॉज होगा? नो, क्लॉज तो नहीं होगा. क्लॉज तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं. सो इट वुड बी अदर सेक्शन और सबसेक्शन. ब्रैकेट में है तो सबसेक्शन. ओके, सबसेक्शन ये किसका होगा? अब आप देखते हैं. 7 से ऊपर 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, ये है, इसके ऊपर सेक्शन है 31. सो अब जो आपका रेफरेंस बन रहा है, रेफरेंस क्या बनेगा? रेफरेंस बनेगा द टेक्स्ट वाज रिटन अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ दिस एक्ट. अब ये एक्ट किसका है देखते हैं. द ड्रग एक्ट 1976. सो कंप्लीट रेफरेंस वुड बी कि if anyone is grieved with the decision of a drug court, he may launch an appeal in front of the high court within 30 days of the decision. और हाई कोर्ट को उस बेंच में दो जजेस से कम नहीं होने चाहिए. कहाँ लिखा हुआ ये लिखा हुआ है भाई अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 31 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976.
अच्छा, अभी शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि क्या इस तरीके की चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं। एक बात ख्याल रखें, रेफरेंसेस आपको याद नहीं करने हैं, प्रैक्टिस से आपके जहन में खुद आ जाएंगे। मुझे एक चीज़ आप लोग ज़रा बताएं ना, इसी पॉइंट में अभी इसको डिस्कस कर लेता हूँ। क्लास का टाइम टेबल बनता है, सेमेस्टर शुरू होता है, क्लास का टाइम टेबल बनता है। आप में से कितने लोग होंगे जिन्होंने क्लास का टाइम टेबल याद किया होगा? कोई बहुत ही अजमत का मीनार होगा जिसने टाइम टेबल रटा होगा, याद किया होगा? नहीं, बस आप 2 से 3 दिन देखते हैं और आपको पता चल जाता है, ये याद हो जाता है कि किस दिन क्या क्लास है। दोबारा आपको टाइम टेबल देखने की कभी कभारी ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसी तरीके से होगा, आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो रेफरेंसेस आपको अगेन याद तो नहीं कि, लेकिन आप इसके लिए यूज्ड हो जाएंगे, क्योंकि टेक्स्ट में जब भी किसी चीज़ का रेफरेंस देना होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, पेज नंबर का रेफरेंस नहीं होता, इसी तरीके से रेफरेंसेस लिखे हुए होते हैं। चलें, अभी कोई एक और एग्जांपल लेने की हम कोशिश करते हैं इसी टेक्स्ट के अंदर से। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब मैं ये देख रहा हूँ कि हाईलाइट कर देता हूँ मैं एक टेक्स्ट को। अब हाईलाइटेड टेक्स्ट में लिखा हुआ है सब क्लॉजेस 1, 2 एंड 3। ये कौन से सब क्लॉजेस हैं? ये लिखा हुआ कहाँ है? ये लिखा हुआ है अंडर दिस। इसे आप क्या पढ़ोगे? ये अगेन रोमन नंबर आ गए, रोमन न्यूमेरियल्स हैं विद इन ब्रैकेट, तो ये होंगे सब क्लॉजेस। और ये भी सब क्लॉजेस की बात हो रही थी, तो जिन सब क्लॉजेस की बात हो रही होगी वो और इसमें कोई सेक्शन सबसेक्शन क्लॉज का रेफरेंस नहीं है, तो यकीनन ये यहाँ पर 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो ये इन सब क्लॉजेस की बात हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल मैं लेने की कोशिश करता हूँ। अब रेफरेंस की आप इंपॉर्टेंस देखें, पेज नंबर का रेफरेंस नहीं होगा, आप ये टेक्स्ट देखें। चले, हाईलाइटेड टेक्स्ट। हाईलाइटेड टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर किसी तरफ रेफर किया जा रहा है। कहाँ पर रेफर किया जा रहा है? रेफर किया जा रहा है क्लॉज H ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23। अब जब आप रेफरेंस दे रहे होते हो, रेफरेंस आप दे रहे होते हो रिवर्स में, पहले सब क्लॉज आएगा अगर मौजूद है, देन क्लॉज इफ़ अवेलेबल, देन सबसेक्शन इफ़ अवेलेबल, देन सेक्शन। ठीक, लेकिन जब आप इस रेफरेंस पर जाओगे, जैसे हाईलाइटेड है ना, इसमें कह रहा है कि क्लॉज H ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 3। अब आपको इस पोर्शन पे जाना है, तो अब आप रिवर्स में जाओगे। फर्स्ट वी विल गो टू सेक्शन 23, देन सबसेक्शन 1, देन क्लॉज H। चलते हैं, कहाँ? सेक्शन 23। सेक्शन 23, ओके, सेक्शन 23, सेक्शन 23, ये रहा सेक्शन 23। सबसेक्शन कौन सा था? सबसेक्शन 1 था, ये रहा सबसेक्शन 1। क्लॉज कौन सा था? क्लॉज था H। वेयर इज H? हेयर इज H। सो प्रीवियस एग्जाम्पल में जिस टेक्स्ट को रेफर किया जा रहा था, क्लॉज H ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23, वो ये था। तो ये इंपॉर्टेंस है इस रेफरेंसेस की। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रखें, कभी कभी आपस में बात कर रहे होते हैं ना, वैसे मैं आपस की बात बता रहा हूँ, बातें कर रहे होते हैं ना, जब आप ये बात बताएंगे कि भाई किसी लॉ में या किसी जगह पर ये चीज़ लिखी हुई है, तो वो इम्पेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब आप ये बात करोगे ना रेफरेंसेस के, इट हैज़ बीन रिटन अंडर सेक्शन अंडर सब क्लॉज G ऑफ क्लॉज A, मतलब इस तरह की कोई बात अगर आप करोगे तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा। बहरहाल सब क्लॉज G कोई होता नहीं है, सब क्लॉज रोमन नंबर्स होंगे, तो या तो आप कहोगे सब क्लॉज 3 ऑफ क्लॉज A ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1, 2, 3। इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पर, ज़रा रोब झाड़ना, तो आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेना। इस वक्त इस लेक्चर में फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे। और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक और एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ज़रा लेजिस्लेशन देखी थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, उधर के कोई रेफरेंस लेते हैं, 1 से 2 रेफरेंस लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब स्क्रीन पे आपके सामने अगेन एक जाना पहचाना टेक्स्ट आ गया। किस हवाले से? ये प्रोसीजर है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कि हाउ टू इंट्रोड्यूस एंड गेट द बिल्स पास्ड इन द पार्लियामेंट। अब ये चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं? अब जो भी हमने बात की ना, आप किसी को बताओगे कि भाई ये नेशनल असेंबली होती है, नेशनल असेंबली में प्रेजेंट होगा, सेनेट में प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो एक्ट बनेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगेन
पढ़ते हैं अब आप। ये सब कुछ लिखा हुआ है, ये तो सिंपल प्रोसीजर 1 में लिखा हुआ है। 1 रीड कैसे करोगे? दिस वुड बी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 70 ऑफ व्हाट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, इसको फ्रंट पे टॉप पर आते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है। इसी तरीके से एक जहन में सवाल आता है कि नेशनल असेंबली में मेंबर्स कितने हैं। सवाल आता है नेशनल असेंबली मेंबर्स कितने हैं, आप बता दो कि भाई नेशनल असेंबली में मेंबर्स हैं 342। कहाँ लिखा हुआ है? अब सवाल आएगा ना कहाँ लिखा हुआ है। फार्मेसी पढ़े हो, इसमें आपको उस वक्त बिलीव नहीं करना है जब तक आप चीज़ों को रेफरेंस के साथ, लेजिटिमेट रेफरेंस के साथ ना देख लो। ओके, नेशनल असेंबली की 342 सीट्स होती हैं, कहाँ लिखा हुआ है? सर्च करते हैं अभी से। प्रीवियस लेक्चर हमने बहरहाल इसे देखा है। 300, ओके, मैंने सर्च किया इसे तो लिखा हुआ गया कि देयर शैल बी 342 सीट्स फॉर मेंबर्स इन द नेशनल असेंबली। ठीक है, ये रहा टेक्स्ट। बात क्या थी? रेफरेंस कहाँ लिखा हुआ है? अब आप रेफरेंस दोगे कि 342 मेंबर्स नेशनल असेंबली में होते हैं। इट इज़ रिटन अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक, ओके, टेक अनदर एग्जाम्पल, another random text. So on the screen you can see the highlighted text. The members of the Central Licensing Board other than its official members shall hold office for 3 years and shall be eligible for renomination. Okay, इसमें लिखा हुआ क्या है? इसमें बस लिखा है कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के जो मेंबर्स हैं नॉर्मली उनका जो टेन्योर है वो 3 साल का होता है। ओके, जब आप रेफरेंस दोगे कि ये कहाँ लिखा हुआ है तो ओके, बाय अप्लाइंग द नॉलेज व्हाट यू हैव जस्ट गेट 3 विद इन ब्रैकेट, क्या कहते हैं इसे? सबसेक्शन। ओके, सबसेक्शन 3। अब सबसेक्शन 3 है तो फिर इससे हमें थोड़ा ऊपर आना है। सबसेक्शन 3 से ऊपर आए तो इसका बन रहा है सेक्शन 8। तो रेफरेंस क्या बना? सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 8 ऑफ, अब ज़रा ऊपर आते हैं कि ये क्या, कौन सा एक्ट है, रूल्स है, ऑर्डिनेंस है, क्या चीज़ें। हम यहाँ पर आ गए। अब जब हमने इसे देखा तो यहाँ पर टाइटल है। टाइटल तो खैर कोई भी लिख सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप इसका जो टाइटल होगा ना, जो वेरीफाई होगा इधर से शॉर्ट टाइटल से। यहाँ पर लिखा हुआ है द ड्रग्स लाइसेंसिंग रजिस्टरिंग एंड एडवर्टाइजिंग रूल्स 1976। चले, ये तो हो गए रूल्स। इससे पहले हमने जितने एग्जाम्पल थे दोज वर अबाउट रिगार्डिंग द एक्ट। अब हैं रूल्स। अब रूल्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ हम सेक्शन और सब सेक्शन की टर्मिनोलॉजी यूज़ नहीं करते, रादर वी यूज़ द टर्मिनोलॉजी ऑफ रूल्स एंड सब रूल्स। सो नाउ दिस रेफरेंस वुड बी सब रूल 3 of rule 8 of the drug licensing registering and advertising rule 1976। मतलब अब अगर आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड के मेंबर्स अदर देन द एक्स ऑफिशियल मेंबर्स, उनकी मेंबरशिप का टेन्योर कितना होता है, तो आपको 3 ईयर्स। फौरन से सवाल आएगा भाई कहाँ लिखा हुआ है, तो आप जवाब देखो कि इट इज़ रिटन अंडर सब रूल 3 of rule 8 of the drug licensing registration and advertising rules 1976। ओके, हमने एग्जाम्पल्स एक्ट की समझ ली, एग्जाम्पल हमने एक रूल की भी देख ली। ज़रा इसे समराइज़ कर लेते हैं रेफरेंसिंग के हवाले से। जब आप एक्ट की बात करोगे तो एक्ट में नंबर वुड बी अ सेक्शन, नंबर विद इन ब्रैकेट सबसेक्शन, small alphabet within bracket would be a clause and Roman number within bracket would be a sub clause। okay, लेकिन जब आप रूल की बात करोगे, इन रूल नंबर would be called the rule, a number within bracket would be the sub rule, और clause और sub clause की explanation is the same। ठीक है, हम यहाँ इसे कंक्लूड करते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप कम से कम 3 से 4 ख़ुद से रेफरेंसेस बनाने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़रा आसान होती जाएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और ये मैं एंटिसिपेट करूँगा कि जब हम अगले लेक्चर में जाएं तो एटलीस्ट आपने ये प्रीवियस 2 लेक्चर जिसमें हमने लेजिस्लेटिव प्रोसीजर की बात की है और जिसमें हमने रेफरेंसिंग की बात की है, ये आपने समझ लिए हों। 1 से ज़्यादा दफ़ा आपको लेक्चर सुनना पड़े, सुन लें, 2 दफ़ा सुनना पड़े, आप सुन लीजिए। थैंक यू।